बोलिए साउंड क्या है? Sir, it is form of energy which enable us to hear something. So is sound need a medium to travel? Yes, sir. How can you experimentally show that sound needs a medium to travel? Nancy, cite some experiment to show that sound needs a medium to travel. Sir, metal bell experiment. Metal bell experiment, that is bell jar, if it is kept inverted over a bell and it is put on, then we are able to hear sound. However, if the air inside bell jar is taken out by vacuum pump, then the sound first becomes feeble and ultimately it goes out. So this shows that sound needs a medium to travel. I should repeat karo. So, in the presence of air, the bell jar, we can hear the sound of the electric bell. But when the air is taken out from the jar, then we will not be able to hear the sound which is coming from the electric bell. This experiment shows that sound needs a medium to travel. What is difference between oscillation and vibration, Nikhil? So oscillation. So जिसमें To and fro motion of an object from its mean position. जैसे हमने एक बॉब को दिखाया था, तो अपनी पोजीशन से इधर और उधर जा रहा था. So to and fro motion is called oscillation. If oscillations are very fast, then it is called. What is the audible range of human being? बताया करो, बोलो ज्योति. Audible range of human being. ठीक है. So can you give some musical instrument which produce sound by plucking string? Okay. Cite some example which produce sound by vibration of air columns. Okay. Now cite some example which gives produce sound by vibrating membrane. बोलो. Membrane के तबला और ड्रम. Okay. Jal tarang is an example of which kind of vibration? Nikhil. Air column. Vibration of Air column. air The column. vibration will be to and fro. So name that organ within our body which produces sound. Larynx. In larynx, what is the thing that vibrates? Voice box. ठीक है. The membranes of which this larynx is made. That वो दो membrane है, वे आपस में क्या करती हैं? Produce करती हैं, sound को vibrate करती हैं. Now, अब जरा देखिए, Mayank, how we are able to hear some sound? So the sound interact with the air particles and If something vibrates like tuning fork तो तुम जानते हो. So if tuning fork vibrates, then the air in contact with it also starts vibrating. When this vibrating air reaches to our ears, then the eardrum, इसके अंदर भी छोटा सा ड्रम है, that also starts vibrating. And our auditory nerves, जो इसके अंदर nerves हैं, they give message to brain and brain detect it as sound. Okay, repeat करो. When some objects vibrates, When some object vibrates, near the vibration, it also gets vibrating and sound travels from vibration. so it starts vibrating. When this vibrating air reaches to our ear, then our eardrum starts vibrating
and that message is sent to brain brain via किसके द्वारा भेजा जाता है? वाया ऑडिटरी नर्व्स। किसके द्वारा जाएगा? या बाई ऑडिटरी नर्व्स। वाया बोलो या बाई, ठीक है ना। सो जैसे आप कहते हो कि मैं दिल्ली जा रही हूँ वाया आगरा, आगरा से होकर, तो ये ब्रेन तक किसके द्वारा पहुँचती है? वाया और बाई, ठीक है। नाउ द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड इट सेंड्स द मैसेज टू ब्रेन by ऑडिटरी नर्व्स। और लास्ट लाइन क्या है? so be able to hear sound. Yes, brain detect is as sound. Now, इतनी बात हमने देख ली। एक तारा is an example of musical instrument in which sound is produced by Sir, by string, vibration of string. vibration of string. Okay. Now, अब जरा देखिए कि आगे की कुछ एक्टिविटी देखिए। Excuse me, sir. सर मैं जी की तो मुझे नहीं आ रहा कि क्या होता है। ओके, तो अभी आ जाए। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन हम आगे देख लेंगे। नाउ चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, सो वॉइस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। अगर वोकल कॉर्ड बहुत बड़ी है तो उसमें ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर एक ड्राम है या नगाड़ा, उसको बीटोगे तो बीट्स करने पर पूरे शहर में मुनादी हो जाएगी कि राजा के लड़का पैदा हुआ है। तो इस बात समझ में आ गई बात कि नहीं? और जो छोटा सा ढफली है या कोई एक तबला है तो उसकी मेम्ब्रेन छोटी होगी। तो जितनी मोटी मेम्ब्रेन होगी, तो अगर एक लायन रोर करता है तो उसकी बहुत मोटी मोटी मेम्ब्रेन है, तो वो जब आपस में ऐसे ऐसे करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? लाउड साउंड इज प्रोड्यूस। सो लाउड साउंड हैज लॉट ऑफ एनर्जी। तो बताइए, मेल में लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है कि फीमेल में? मेल की जो मेम्ब्रेन होती है वोकल कॉर्ड की, वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती है, तो उससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। इट हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी, इट गोज अप टू लॉन्ग, उससे वो रिक्शे वाले को भी बुला सकता है। जबकि फीमेल की जो मेम्ब्रेन है वो पतली होगी, एंड हाउएवर इट हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी। मेल में हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन जो चीज़ पतली है तो वो ऐसे ऐसे कई बार कर सकती है, तो उसमें पिच ज़्यादा है। पिच का जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसे क्या कहते हैं? पिच। सो उससे साउंड मेलोडियस होता है। सो फीमेल है मेलोडियस साउंड, हाई मेल है लाउड साउंड। तो लाउडनेस समझ में आ गई? तो अब हम जरा इन सभी चीज़ों को देखें। नाउ देखिए, कुछ चीजें एक बार और देख लें। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to hear, इसकी वजह से हम सुन सकते हैं। नाउ क्वेश्चन है, हाउ साउंड, how we are able to hear sound, hear sound, हम कैसे साउंड को सुन पाते हैं? Now we are able to hear sound if some object vibrates, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? साउंड को सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तो इसमें ये ट्यूनिंग, ये तो फॉक्स हो गए और ये हैंडल हो गया। These are two forks, कांटे होते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं, तो वही समझिए ट्यूनिंग फॉक्स है। तो ये इसमें वाइब्रेशंस हैं, देखो इसमें वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं। आवाज आई? तो ये देखो, देखो आ गई कि नहीं? तो इससे क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क, सो इफ समथिंग वाइब्रेट्स, तो ये देखो ये अपने इस साइड भी वाइब्रेट करेगा और इस साइड भी, तो दोनों तरफ वाइब्रेट करेगा। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कैसा मोशन है? टू एंड फ्रो। सो इसकी वजह से द एयर नियर इट आल्सो स्टार्ट्स, वो भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन होने की वजह से
यहाँ पर कहीं कहीं एयर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगी और कहीं कहीं कैसा हो जाएगा, वाइब्रेशन तो इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर बताइए क्या है, कंप्रेशन। और कहीं कहीं एयर कैसी होगी, दूर दूर, तो उसको क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन। और जहाँ पर एयर पास है उसे क्या कहेंगे, कंप्रेशन। ये देखो कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन। तो ये पहले एयर में नहीं था, लेकिन जब ये वाइब्रेट करने लगी तो क्या हुआ बताओ, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होने लगे। इस चीज को आप समझेंगे कैसे प्रोड्यूस हुए। और ये हमारा ईयर है, और ईयर में अंदर में क्या है, ईयर ड्रम। तो ये ईयर ड्रम से फिर एक आगे हम अभी ईयर के बारे में पढ़ेंगे, तो एक कॉस्टलिया ईयर। तो इसमें क्या होगा, ईयर ड्रम से ये ले लेता है, इसी में ऑडिटरी नर्व्स हैं। तो वो ऑडिटरी नर्व्स कहाँ पे जाएंगी, ह्यूमन के ब्रेन में जाएंगी, और वहाँ पे वो क्या कर देंगी, ऑडिटरी नर्व्स दे आर टू ब्रेन, और वहाँ पर वो क्या करेंगी, मैसेज दे देंगी। और ये क्या है, ईयर ड्रम। और ये चीज क्या है, दैट इज पिना। और ये एयर कॉलम है, इसमें रेयरफेक्शन कौन कौन सा है ये, और कंप्रेशन कौन कौन सा है, जहां पर पार्टिकल कंजेस्टेड है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए जैसे हम एक स्लिंकी लें, तो स्लिंकी लेने पर अर्पिता देख, सो देखो ये समझो एयर कॉलम है, अब इसमें वाइब्रेशन शुरू हो रहा है, पकड़िए। तो ये एक अभी इसमें यूनिफॉर्म है, ये देखो। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो क्या आप देखो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो बीच में कंजेस्टेड हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो तुम्हारे हाथ में वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, दिस इज कंप्रेशन। थैंक यू। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जैसे आप इसको वहां से बताओ, ये आगे जा नहीं पा रहा बुक की वजह से, कोई बात नहीं। ये देखो, समझ आया, ऐसे एयर में होता है। तो यहाँ पर पार्टिकल अगर मान लो कि ठीक है, कहीं पर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बहुत कंप्रेस्ड हो जाएंगे या कंजेस्टेड हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, दैट इज ए काइंड ऑफ कंप्रेशन। तो ये देखो हो रहा ऐसे इतनी बात समझ में आ गई है, वो आगे देखेंगे। So how we are able to produce sound, मतलब listen sound या hear sound. So when some object starts vibrating, वाइब्रेटिंग का मतलब टू एंड फ्रो मोशन, जैसे आगे पीछे जाना है, जैसे बार बार करें तो ये वाइब्रेशन है। सो वाइब्रेटिंग, देन एयर कॉलम नियर इट स्टार्ट्स, वो भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेटिंग, वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। व्हेन दिस वाइब्रेटिंग एयर, तो इसमें क्या होगा बताइए, जो एयर वाइब्रेट करेगी तो उसमें कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो। क्या चीजें होंगी, कंसेक्यूटिव मतलब अल्टरनेट कंप्रेशन। अगर मैं ज्यादा तेजी से हाथ को वाइब्रेट करूं तो क्या उसमें कंप्रेशन पास पास हो जाएंगे, और धीरे धीरे करूं तो दूर दूर होंगे। तो ये तो हमारे बोलने के ऊपर है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी, वैसे ही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इस एयर में हो रहे हैं कि नहीं। तो एयर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड दिस एयर, जो भी ये एयर है, तो और फिर क्या होगा, एयर आगे नहीं जाएगी। हमने ये जो एयर यहाँ से मुंह के पास है वो आगे नहीं जाएगी, लेकिन वो दूसरे पार्टिकल को स्टार्ट कर देगी ऑसिलेशन, और इस तरीके से एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेशन का मतलब आगे बढ़ना। And in this way, energy reaches, sound energy reaches to listener
अब ये एनर्जी जो थी, जो हमने बोला ना, ये हवा यहाँ वाइब्रेट करने लगी। क्यों वाइब्रेट करने लगी? क्योंकि मेरा वॉइस बॉक्स ही वाइब्रेट कर रहा है, तो उससे जो आवाज़ आई उससे एयर वाइब्रेट करने लगी। एयर नहीं जा रही सबके पास, इतने लोग हैं, हजारों लोग बैठे हैं, तो क्या एक आदमी की एयर सबके पास जाएगी? लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, तुम एक बहुत बड़े कुंभ के मेले में एक आदमी को धक्का दे दो, फिर देखो मजा, वो बगल वाले को धक्का देकर फिर से आ जाएगा ऐसे, और वो धक्का अगले वाले को देगा, तो देखो कि धक्का बढ़ रहा है, वो आदमी वहीं खड़ा है, और फिर से उसे एक बार और धक्का दो, तो वो धक्का तब तक आगे बढ़ गया, दूसरा धक्का आगे बढ़ा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम कुछ भी चीज करते हैं तो हमारी स्विंगी नहीं जाती है, क्या जाती है बताइए उसके साथ में? दैट इज, ये देखिए, दैट इज ओनली द एनर्जी दैट मूव्स अहेड। आइए आगे, चलो ये उधर जाओ पीछे, तो मान लीजिए, और पीछे जाओ, इसको टॉर्च पकड़ना है, तो ये जैसे है, तो ये रस्सी है, तो अगर मैं यहाँ पर ये अभी तो सेट नहीं हुआ है वाइब्रेशन, फिर से पकड़ना पड़ेगा, मतलब अब आ रहा है धीरे धीरे, तो वो वाइब्रेशन एक सेट हो गया, देख रहे हैं आप? सो इट इज ओनली द एनर्जी विच इज रीचिंग टू हिज हैंड। अब उसको फील भी हो रहा है हाथ में, हो रहा है कि नहीं? ये चीज, तो इट इज नॉट द रोप इज मूविंग, तो एयर नहीं जाती आगे, बल्कि वो जो रिपल्स बन रहे हैं वही तो आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो when some object start vibrating, the air column near it also start vibrating, and this and sound energy moves in this way to the listener. कहाँ पे पहुंच जाती है? And sound energy reaches to ear, our ear, हमारे ईयर में पहुंच जाएगी, और जब वो एनर्जी वहां पहुंच जाएगी, सो आवर ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। सो आवर ईयर ड्रम ठीक है, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। माइंड क्या करेगा? ऑडिटरी नर्व होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स रिसीव दिस मैसेज। अब ये जो मैसेज है ये कैसे पहुंच गया? जैसे कि मान लीजिए ईयर है, तो ईयर में आप ईयर ड्रम देखो, ये ईयर ड्रम दिख रहा है, हाँ ये वाइट है, और इसके आगे एंजिल और स्टॉप और भी चीजें जब ईयर पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, लेकिन अभी ईयर ड्रम देखो, दिख रहा ना वाइट कलर का, तो ये चीज है। और इसके पीछे एक कॉस्लिया जो मैंने दिखाया, ये निकाल दिया जाए, ये कॉस्लिया दिख रहा, ये नर्व्स ले जाएगा, नर्व का बंडल है, ये ब्रेन को दे देगा इसकी आवाज का, और वहां से क्या हो जाएगा? ईयर ड्रम कहाँ है? होल होने से सू की आवाज आएगी, तो उसको बंद करवाना है डॉक्टर से। एक बार जैसे कहते हैं कि हमें तेज सही नहीं सुनाई पड़ रहा, तो जब लोग नहाते हो कान में पानी चला जाता है तो होल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसको अच्छे से कान साफ करना है, फिर सूखा रहने देना तो नहीं, तो होल हो जाने पे फिर दिन भर ऐसे लगेगा सीटी बज रही कान, इसलिए ईयर ड्रम हो गया। और ये कॉस्लिया, ईयर ड्रम कहाँ है? कॉस्लिया कहाँ है? और ऑडिटरी नर्व्स कहाँ है? ये बंडल, ये कॉस्लिया। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है, तो समझ आ गया, तो उसको फिर हम एम्प्लीफाई कराते हैं। बोलो ये ड्रम कहाँ है? ऑडिटरी नर्व्स कहाँ है? ये ऑडिटरी नर्व्स समझ आ गया, ये से साउंड ले लेना। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ऑडिटरी नर्व्स को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, ये इलेक्ट्रिसिटी करो। अच्छा क्वेश्चन पूछा दीदी ने, कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स भी वाइब्रेट करती हैं, नर्व्स कभी वाइब्रेट नहीं करती हैं। नर्व्स हमेशा अपना सिग्नल किस फॉर्म में भेजती हैं? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। जैसे इंसान में करंट जा रही है
ऐसी करंट बहुत हल्की करंट प्रोड्यूस होती है। और तुम्हें करना हो तो आप कोहनी मार के देखो, ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया। तो वही चीज होती है। देखो उन्होंने करंट फील किया, ये देखो ईयर ड्रम, कॉस्टिया, ये ईयर ड्रम दिख रहा ना, और ये कॉस्टिया, और ये क्या है बताओ, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो ईयर ड्रम और ये क्या है बताइए, हाँ ईयर ड्रम और ये ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। तो श्रव्य तंत्रिका तंत्र, और ये जो है इसी को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो आपको अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज़्यादा आसान लगेगा तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये समझ में आई कहाँ है ऑडिटरी नर्व्स और ईयर ड्रम कहाँ है। यही जो हमने कॉस्टिया बनाया है वो बना कॉस्टिया कहाँ है, तो फिर क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पूरा करो। अब ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगे, ये तो हो गया ईयर ड्रम, ये ऑडिटरी नर्व्स है कॉस्टिया के पीछे। अब ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगे, सेंड दिस मैसेज, किसे भेजेंगी, टू ब्रेन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, लेकिन अगर करंट बहुत थोड़े समय के लिए हो तो उसे इम्पल्स कह देते हैं, झटका। सो ऑडिटरी नर्व्स सेंड दिस मैसेज to brain in form of electric signal लिख दो, impulse ना लिखो तो, समझ में आया। and brain detects it as sound, brain detects it as sound। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जैसे अगर हमने एक सिंपल बॉब पेंडुलम ले लिया और वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे। और अगर मान लीजिए वही बहुत तेज होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, तब उसे वाइब्रेशन बोलेंगे कि नहीं। चलो ना, ये देखो मोशन, ठीक है, वो अभी आपको छोटी क्लास में ऐसा बता दिया गया है। फिर वही वाइब्रेशन है इफ फास्ट ऑसिलेशन, अगर यही फास्ट हो जाए टू एंड फ्रो वो भी है, बट फास्टर ऑसिलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है वही चीज, लेकिन थोड़े फास्ट हो तब वाइब्रेशन। ये देखो, तो ये हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या टू एंड फ्रो कर रहा है, सिंपल ब्लॉक, तो बॉब पेंडुलम भी कह सकते हो। तो दिस इज ए काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, तो ये ऑसिलेशन है। लेकिन अगर ये बहुत तेज हो तब इसे क्या कहेंगे, तब वाइब्रेशन। अभी ऑसिलेशन अपनी उसकी ये मेन पोजीशन है जहाँ ये आके रुक जाए। तो क्या जितना ये इधर जा रहा है मैन उतना ही वो उधर जा रहा है। सो फ्रॉम मेन पोजीशन दिस हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट टू आइदर साइड, क्या जितना इधर जा रहा है उतना ही जा रहा है उधर। तो ये जो अपनी मेन पोजीशन से आयुषी ये इधर गया उसे क्या कहोगी, एम्पलीट्यूड। So the distance an object moves from its mean position to either side, यहाँ से जो इतना इधर गया ये हमारा हाथ है, इधर गया उधर गया, तो इससे इतना जिधर गया वो एम्पलीट्यूड है और उधर जितना गया वो भी एम्पलीट्यूड है। तो कोई भी मेम्ब्रेन है जो तुम्हारा नगाड़ा है या तबला है, क्या अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाता है, और जो बहुत ऊपर चला जाए अपनी मीन पोजीशन से बहुत नीचे जाए तो बोलो ड्रम ऐसा करेगा कि नगाड़ा ऐसा करेगा। नगाड़े की बड़ी मेम्ब्रेन तो वो ऐसा करेगा, वो लाउडनेस है। जो जितना ज्यादा मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाएगा, सो इफ मोर इज द एम्पलीट्यूड देन मोर इज द लाउडनेस। लाउडनेस कंटेन्स एनर्जी। बात समझ में आई। सो क्या चीज यहाँ बताई गई बताइए।
ठीक, oscillation. So Jyoti, what is oscillation? Oscillation is to and हाँ, fro to of and fro motion. जो ये ना बोल सके तो बोल देना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, लेकिन चलन में यही है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? ऑसिलेशंस. सेंटेंस पूरा करो ज्योति. इफ ऑसिलेशंस आर वेरी फास्ट देन इट इज कॉल्ड vibration. Vibration. So if oscillations are very fast then it is called vibration. इतनी बात समझ में आ गई? तो वाइब्रेशन के बारे में भी हमने ये बात समझ ली कि कोई भी चीज कैसे वाइब्रेट करती है. नाउ अब जरा देखिए कि with an experiment show that sound needs a medium to travel. With an experiment show that sound needs medium to travel. Now अब देखिए कि बेल जार ओवर इलेक्ट्रिक बेल. तो जो हम लोगों की साइकिल में वो इलेक्ट्रिक बेल नहीं है, वो मैनुअल बेल है, उसको हाथ से करना पड़ता है. लेकिन इलेक्ट्रिक बेल वो स्कूल की होती है, वो स्विच ऑन करेगा उतनी देर बज जाएगी, वो उसको हाथ से नहीं करेगा, वो ऐसे ऐसे ट्रिंग ट्रिंग नहीं करेगा. तो इसके अंदर आपने क्या रख दी बताइए? दिस इज इलेक्ट्रिक बेल. और उसमें हैमर है कि नहीं? Yes, sir. और उसमें साथ में 2 तार भी निकला होगा, Yes. और वो कहीं ना कहीं जाकर स्विच में लगाया गया होगा. तो हमने इसके ऊपर एक क्या रख दिया है? बेल जार एंड सील इट्स रिम. और इसके रिम में वैक्स लगा दो, कुछ मोम लगा दो वैक्स, जिससे कि जब हवा निकाली जाए तो ना वो साइड से अंदर भी आती जा रही है. तो आपका वैक्यूम सिस्टम ही. या टेप लगाओ, हवा निकले तो कम से कम निकल तो जाए, ऐसे ढकने से तो नहीं निकलेगी ना, वो तो फिर से चली जाएगी. तो सील करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या करें बताइए? कीप इन्वर्टेड. ये बेल की तरह है, इसके ऊपर ऐसे लगा रहता है, तो इसको क्या कहेंगे? बेल जार. बेल की तरह है तो बेल. सो कीप. और जो इलेक्ट्रिक बेल है ये बिल्कुल इसी तरीके से होगी. अब यहाँ पर हम इसको इन दोनों पिन से 2 तार इसमें लगा देते हुए बजने लगे, बट अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. बट आप ये जान लीजिए ये चीज़ें भी बार बार इस पर टक्कर मारेगी और बजने लगेगी, है कि नहीं? इसी में 2 पिन लगानी, उसमें तार लगानी. तो अब जरा देखो कि बेल जार ओवर इलेक्ट्रिक बेल कर दिया. स्विच ऑन. फिर क्या करोगे? बोलो रिया. स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड पुट योर ईयर नियर इट. अपने कान इसके पास लाओ तो साउंड पता चलेगा. उतनी तेज आवाज नहीं आएगी. जब उसमें वीडियो में देखा था तुमने तो थोड़ी आवाज कम हुई थी, लेकिन सुनाई तो पड़ रही थी ना. तो स्विच ऑन एंड लिसन द साउंड. रिंगिंग साउंड. किस आवाज को सुनाओगे? रिंगिंग साउंड. नाउ यूजिंग वैक्यूम पंप. अब इसमें क्या लगा दो? एक वैक्यूम पंप से इसे क्या कर दीजिए? दैट इज वैक्यूम पंप या कंप्रेसर. उससे एयर आउट कर दो. सो यूजिंग वैक्यूम पंप, ठीक है, टेक आउट एयर from
inside the bell jar. First sound becomes feeble या dim and ultimately it goes out. First sound becomes dim and then ultimately goes out. It proves that इससे क्या पता चलता है? Sound needs medium to travel. Sound needs medium to travel. We cannot talk at moon. Why? So we cannot by in mood. So because there is no air. दो नो एयर एंड नो कोई भी मीडियम नहीं है तो इसलिए हम वहां पर बात नहीं कर सकते. नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ वी आर एबल टू हियर साउंड. और दूसरा क्या है कि विद एन एक्सपेरिमेंट. सो यही दो क्वेश्चन आपको करने हैं और ये डायग्राम भी बनाना है. डायग्राम बना रहेगा, बस आपको बनाना है और ये भी बना रहेगा लेकिन बनाना है. एयर होती है उसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? एयर इज अगर एयर ही ना हो तो जो बेल बज रही है तो उसके वाइब्रेशन क्या एयर ही नहीं रहेगी तो किसको ट्रांसफर करेगा? तो जब वो चीज़ ट्रांसफर ही नहीं हुई किसी को तो फिर क्या वो बेल जार इसमें पहले इसमें रिंग हुआ, फिर एयर में वाइब्रेशन हुआ, फिर बेल जार में वाइब्रेशन हुआ, फिर उसकी वजह से बाहर के एयर में हुआ, तब यहाँ अगर इसके अंदर की हवा निकाल ली जाए तो इसके और इसके बीच का मीडियम कट ऑफ नहीं हो गया. वैक्यूम पंप से उसका एयर निकाल. तो जैसे कोई घर में वैक्यूम क्लीनर होता है वही वैक्यूम क्लीनर लगा के इसकी एयर सारी आउट कर लो. तो इसके अंदर की जब सारी एयर आउट हो गई तो फिर इसके वाइब्रेशंस क्या ट्रांसफर हो पाएंगे बेल जार तक? क्योंकि बीच में कुछ रहा नहीं. तो जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इससे एयर वाइब्रेट हुई और उसी एयर से ये वाइब्रेट हुआ. लेकिन यदि एयर ही हटा लिया तो इसके वाइब्रेशन का क्या हमारे ईयर्स पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्यों? फिर तो सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसने अपनी ये तो एनर्जी ट्रांसफर है. तो एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय सम मीडियम. अगर मीडियम ही नहीं होगा तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? तो एयर ही वो चीज़ है जिसमें एयर में पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं. ठीक है कि नहीं? चलो नाउ